Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Today we are going on to the next chapter in this unit, that is squares and square roots. So this is a chapter 6 in NCERT book. So you can also refer this NCERT book that time, and this is a chapter number 6. But in this unit we are going on to the unit number 2. So that unit number 2 is suggesting the second one chapter. First one chapter that we conclude, that exponent and powers. So in this unit, this chapter is suggesting that squares and square roots. So we can start first with the number squares. So it is also easily we have to find out. So we get here some concept. That concept is related with the squares. Okay. So let us start with that. We already conclude this exponent and powers, and it has only one practice question, that is 1. So practice question 1 you have to complete it with this chapter. So it is also be put in your fair book. So practice question number 1 already we discussed into the yesterday's lecture, and that is also be very useful for you. So you can also write down each and everything whatever we put it into the exponent and power. So practice question number 1, before first you have to complete it in your fair book also, and then after we go for the next one. So today we have to discuss here the number squares. So what do you understand about the number square? Just we have to take it one by one. So you can also open this your supplementary book here, and you can also open this supplementary book in the page number SB7 is there, sorry, SB8 is there. So you can open this chapter 6 square and square roots in unit number 2. So this SB8 you can also open with me your supplementary book, so you can also directly see whatever the content we have to discuss in during this chapter. So square and square roots are very easy chapter. Similar way cube and cube roots भी है यहाँ पे. So हम यहाँ पे use कर रहे हैं वो squares. So before we are going on to the squares, number squares, here given that what can you say about the pattern shown below? आपको एक पैटर्न दिख रही है जो आपके बुक में भी कंसेप्ट टाइम 7 में दिख रही होगी. वही कंसेप्ट में जो आप मेरे साथ यदि आप सप्लीमेंट्री बुक ओपन करके पढ़ेंगे तो आप वीडियो को अच्छी तरह से इलस्ट्रेट कर सकोगे, और यू कैन ऑल्सो आस्क वॉट एवर यू हैव द क्वेश्चन. आपको कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी बता सकते हो बाद में, यदि आप पैरेलल यू हैव टू सीन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. So in this textbook is suggesting that one pattern is given. One ball is one green balls, then two green balls, three green balls, four green balls is there, five green balls is there, six green ball is there. मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी पैटर्न दिख रही है कि हाउ कैन वी से दैट. तो यहाँ पे दो के ऊपर एक बॉक्सेस किया गया है, एक के ऊपर और चार के ऊपर. बाकी सब आप देखो तो 2, 3, 5, 6 ये सब में कुछ भी बॉक्स नहीं किएगा. मतलब what can you say about the pattern shown below is there? So let us move on that. The number 1 and 4 can be represented in the form of square. हम ऐसा कह सकते हैं कि out of given all the numbers, number 1 and 4 that can be represented in the form of a square. Such numbers are called परफेक्ट स्क्वायर. हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि कोई भी नंबर 1 और 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वी कैन पुट इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और नॉट. जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट. हियर वी हैव टू गिव द वन एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. सो सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4 टू डू दिस एक्टिविटी. अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई एक्टिविटी के लिए हमारे पास कोई है नहीं, बट आप यदि घर में भी 3-4 लोग हैं तो जस्ट यू हैव टू मेक इट वन ग्रुप. एक ग्रुप बना लो 4 टू डू दिस एक्टिविटी. ग्रुप्स ऑफ 4, एक 4 के एक ग्रुप में बना लो अपना एक ग्रुप. ईच ग्रुप विल बी गिवन 20 ब्लॉक्स. सपोज आपको 20 ब्लॉक्स दिया गया है. अब टास्क क्या करना है,
Using the blocks, find out whether the given number of blocks from form a square. अब ऐसा बोल सकते हो कि 20 ब्लॉक दिया गया है तो आप ये 7, 9 और 16 कितने ब्लॉक बना सकते हो? तो हम ऐसा यूज करते हैं कि आपको एक एक्टिविटी दी गई तो एक्टिविटी के ऊपर आप क्या सोच सकते हो? तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर हमने तो कुछ पता नहीं चला इसमें कि हाउ कैन वी शोइंग दैट, कि सपोज हम 20 ब्लॉक को यूज कर ले एंड फाइंड आउट द वेदर द गिवन नंबर ऑफ ब्लॉक फ्रॉम ए स्क्वायर। 7 को आप स्क्वायर में रख सकते हो, दो दो के नहीं रख सकते। 9 को रख सकते हो, 16 को रख सकते हो, किसको रख सकते हो? तो यूजिंग द ब्लॉक्स, आपके जितने भी ब्लॉक है इस ब्लॉक को आप कैसे रूट कर सकते हो? दैट एक्टिविटी इज गिवन हियर लाइक दैट। 7 ब्लॉक है तो 7 ब्लॉक को आप 3 3 और एक 7, 9 को 3 3 3 की रो में आपने रख दिया और 16 को 4 4 के ब्लॉक में आपने रख दिया। सो वी कैन फॉर्म स्क्वायर्स यूजिंग 9 ब्लॉक्स एंड 16 ब्लॉक्स। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्क्वायर यानी पूरा चौरस, स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। 7 ब्लॉक होता तो पूरा स्क्वायर नहीं बनता, देखा आपने। 9 ब्लॉक्स है तो पूरा स्क्वायर बन सकता है, 16 ब्लॉक है तो पूरा ब्लॉक बन सकता है। ये आपका रिजल्ट है। आप कोई एक्टिविटी करते हैं, 20 ब्लॉक को आपको रखना है तो आप एक 16 ब्लॉक बना सकते हैं, 9 का ब्लॉक बना सकते हैं, बट 7 का ब्लॉक नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ इट्स नॉट पुटिंग इनटू द डिजाइन ऑफ पैटर्न ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है कि सपोज if we put in this 9 block and 16 block, such numbers which form a square are called perfect square number। मतलब हम जिस जो नंबर के परफेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि those numbers which form a square, जिस नंबर की मदद से हमें स्क्वायर फॉर्म होता है उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अब 9 को परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, 16 को परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, 7 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 3 3 जार 9। 16 है तो 4 का स्क्वायर है। अब देखो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया कि जिस नंबर को आप स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हो उसी को हम, मतलब कि स्क्वायर यानी हम यहाँ पे एक फिगर की तरह देखेंगे स्क्वायर। उस फॉर्म में यदि हम उसको उस नंबर को डाल सकते हो उसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ये फिर से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हियर गिवन दैट 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। 5 यूनिट यानी 5/5, 4 यूनिट यानी 4/4, 3 यूनिट यानी 3/3, 2 यूनिट यानी 2/2, 1 यूनिट मतलब 1 एंड 6 यूनिट दैट इज 6/6। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? आपने क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक यूनिट में एक है, दो यूनिट में दोनों साइड दो दो है, 3 यूनिट में रो और कॉलम 3 3 है, 4 यूनिट में रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन करो तो 4 है, 5 यूनिट में 5 है, 5/5 है, 6 में 6/6 है। सो हाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट? एक यूनिट में एक स्क्वायर था, 2 यूनिट में 4 था, 3 यूनिट में 9 था। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यानी आप देखो तो एक यूनिट में एक ही स्क्वायर है, मतलब 1 इंटू 1। 2 में 2 है, सो दैट्स वाई 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 में 3 है तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 4 में 4 है स्क्वायर, so we can say that 4 into 4 क्योंकि all sides are 4। Similar way 5 into 5, 6 into 6, that is very easy। All the numbers that make a perfect square are number formed by multiplying a number to themselves। उसी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर्स आपको बनता है उसी से जो फॉर्म होता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे देखते हैं
When we multiply a whole number to the same number, the resulting product is called a square number. जब हम किसी whole number को same number से, उसी same number, whole number to the same number, if we multiplying, whatever we get after getting the multiplication, whatever the product is raised, that is called a square number. A perfect square और simply a square, ये तीनों नाम एक जैसे. आप यदि स्क्वायर नंबर बोलो, परफेक्ट स्क्वायर बोलो या सिंपल स्क्वायर बोलो, all three names are similar for the one thing. So 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 and so on, all are the square numbers. हो गया. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो 1, 4 जो प्रोडक्ट होती है 1 इंटू 1, प्रोडक्ट हुई तो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलती है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर. 1, 2 इंटू 2 यानी 2 यूनिट में जब हम यूज करते तो उसकी प्रोडक्ट आ रही है 4, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर. 3 into 3, then we get 9. That's why 9 is a perfect square or square number. समझ में आ गया ना. 25 है तो 5 into 5 25, तो 25 is a square number या perfect square या square जिसको बोलते हैं. तो ये सब स्क्वायर नंबर्स आपके सामने आ गए. तो ये चीज तो बड़ी इजी है और अर्लियर क्लासेस में भी आप सीख चुके हो. दैट इज वेरी इजी, बट यहाँ पे बेस है तो अच्छी तरह से समझना. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. अब आप ये 10 तक के स्क्वायर आपको याद रख लेने. ऑब्जर्व द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स. डू यू सी ए पैटर्न? 1 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100. अब देखो तो यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिख रही है. आप ऑब्जर्व करो, आपका माइंड लगाओ. जितना आप माइंड लगा सकते हो इतना आप माइंड लगा सकते हो. इससे आपकी एक चीज आपके माइंड में क्लिक हो सकती है. क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखो, वी सी दैट ऑल these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट द यूनिट प्लेस. अब देखो सभी के यूनिट प्लेस. अब देखो तो पहला स्क्वायर है 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9. अब ब्लू अक्षर सब देख सकते हो ना, 4, 1 एंड 0. इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो भी नंबर्स स्क्वायर नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस या तो 0 होती है, या तो 1 होती है, या तो 4 होती है, या तो 5 या 6 और 9 हो सकती है. ए कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6. 0 से लेके 0 1 4 5 6 एंड 9. यदि ये सब नंबर्स आपको मिल सकते हैं तो ये पैटर्न आपको पता चली. सिर्फ मैंने 1 से 10 नंबर का ही स्क्वायर लिखा, उसमें यूनिट प्लेस आप सभी के देखो तो लास्ट यूनिट, मेरे मेरे कहने का मतलब लास्ट ऊपर के 3 में तो एक ही डिजिट है तो वो ही यूनिट प्लेस होगी. बाकी के जो दो दो डिजिट है उसकी यूनिट प्लेस आप देखो तो 6 5 6 9 4 1 0. मतलब यूनिट प्लेस की पोजीशन पे हर बार ए नंबर ही आएंगे. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज हैव, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस में 0 1 4 5 6 और 9 ही आएंगे. दैट इज अ रूल. समझ में आ गया? द नंबर्स दैट आर परफेक्ट. हमें अभी हमें ऐसा कहने का परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, चलो बोलो. तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है जिस नंबर का आपने स्क्वायर निकाला उसकी यूनिट प्लेस पे यदि 0 1 4 5 6 और 9 आता है यूनिट प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे. Is it okay? But it does not mean that all the numbers ending in 3 digits will be perfect square. ये तो 2 डिजिट तक की हमने बात कर ली, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि all these digits will be perfect square into the numbers ending in these digits. So, but it does not mean that
all the numbers ending in these digits will be perfect square. जरूरी नहीं है कि जब ये सब नंबर हो तो ही परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 90 has 9 unit place but it is not a perfect square. समझ में आ गया? ऐसा आपने कहा ना कि भाई 0 1 4 5 6 और 9, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि हर बार जरूरी नहीं होता कि ये सब डिजिट होने से वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है. कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होता है. सपोज 19 है तो 19 में 9 यूनिट प्लेस पे है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. So we can also focus on this kinds of the talk also. Okay, so this is the fundamental portions that we have to using here. And if the numbers have 2 3 7 or 8 in their one place, they are not square numbers. इसका मतलब ऐसा ही हुआ ना कि 0 1 4 5 6 और 9 तो हो गया, तो 0 1 4 5 6 और 9 है, ये जो होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होता है. उसके अलावा आप देखो तो जो जो चीज मिसिंग है, 0 1 तो ठीक है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, तो 2 3 7, ये सब नंबर होता है 8, ये सब नंबर आपको लास्ट यूनिट प्लेस में जब भी दिखे, we can directly say that it's not a perfect square. समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखना है. और मैंने अभी बात बताई आपको कि 19 वाला एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है, 9 is its one's place but it is not a perfect square. So it is also be given in your supplementary book पेज नंबर SB10. उसमें एक नोट लिखी है, आप शायद उसमें पढ़ोगे तो पता चलेगा कि it does not automatically mean that any number ending in 3 digits, these digits will be a perfect square. 19 ends in 9 does not automatically mean it is a perfect square. ऐसा मानना जरूरी नहीं भी होता है. तो हर बार आपको नहीं, but 99% you have to use this rule. Okay? अब हम आगे बढ़ते हैं. Just we have to take it out. अब हम ऐसा देखते हैं कि suppose after taking this all the fundamentals rules of the square, we can directly move on to the practice. So today I also provide you to the one NCERT PDF with this video. So you can also directly use this, try this NCERT, try this page number 91 and page number 92. If you have to not got from that PDF, so I am also given here the independent practice over here. मैंने आपको एक बात बता दी कि जब भी मैं कोई वीडियो के साथ PDF भेजता हूँ तो यू कैन वॉच केयरफुली ऑन दिस वीडियो. आप उस PDF, ये जो PDF होती है ना, वो PDF आपके अलग रिसोर्सेस, आपका अलग सोर्स के लिए मैं यूज करता हूँ. बेसिकली क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर curriculum is handled with both of the books. Your lead school or our curriculum is concerned with your supplementary book, and one is additional sources from the NCERT book. तो NCERT बुक से भी आपको रिफर करना चाहिए. और ये आपके लिए इतना अच्छा है कि आप अपना बेस यदि कॉन्क्रीट बनाना चाहते हैं 10th से पहले, 10th स्टैंडर्ड से पहले, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस काइंड्स ऑफ द थिंग्स. सिर्फ आप सप्लीमेंट्री बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन करके बैठ न जाए, बिकॉज ऑफ मैथ्स इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट. आप यदि इसको लाइटली लेने का ट्राई करेंगे तो इट विल डेफिनेटली डैमेज्ड in your particular career also. So be careful into the maths. Whenever you get the time, you do more practice on the maths, isn't it? तो ये चीज आपको करनी है. अभी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि विच ऑफ ट्राई दिस वन में पेज नंबर 91, आज मैं जो PDF आपको भेज रहा हूँ उसके पेज नंबर 91 में आपको देखना है और ये चीज आपको सॉल्व करनी है. आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है मैं आज आपको बता देता हूं, बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 आज जो है उसका होमवर्क में देने वाला हूं. विच ऑफ द 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर एंड
109 का स्क्वायर वुड एंड विद द डिजिट 1। ये सब डिजिट 1 से एंड हो गए। आपको एक क्वेश्चन बताया गया है, अब देखो, वी नो दैट इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, हमें पता है कि या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। हमें पता है कि जिस कोई भी नंबर्स का यूनिट प्लेस यदि 1 और 9 होता है, देन उसका स्क्वायर भी एक से ही एंड होता है। So we can say that 161 का स्क्वायर एंड 109 का स्क्वायर will end with the digit 1। बाकी किसी का भी स्क्वायर एंड विद द डिजिट 1 से नहीं होगा। मतलब उसका आंसर जब आएगा तो उसका जो आंसर होगा उसमें लास्ट वन डिजिट 1 नहीं होगी, ऐसा कहना है। मतलब ये रूल भी हुआ ना कि यदि आपके पास 1 और 9 यूनिट प्लेस पे है, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, उसकी लास्ट वन डिजिट यूनिट प्लेस में यदि 1 और 9 है तो ही उसका आंसर, स्क्वायर जब आप निकालेंगे तभी उसका आंसर 1 आता है, डिजिट 1 आता है। तो ये चीज आपको रूल में याद रखनी है। ये एग्जाम्पल भी आपको आज फिर से होमवर्क में भी लिखना है, भले ही मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। समझ में आ गया? आप जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ उसके पेज नंबर 91 में जो भी दिखाया ट्राई दिस में, वो वहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वन इज सजेस्टिंग हियर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव द डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। तो आपने पहला याद रख लिया 1 और 9 यूनिट प्लेस पे यदि 1 एंड 9 आता हो, उसकी आंसर, स्क्वायर का आंसर भी यूनिट डिजिट लास्ट एंड विथ द 1 ही होगा। 19 का स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव द डिजिट 6 एट द यूनिट प्लेस। 6 डिजिट यूनिट प्लेस पे आए ऐसा कोई इसमें से कोई नंबर्स आपको दिख रहा है? 19 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 36 स्क्वायर एंड 34 स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि जिस भी नंबर 36 का मतलब लास्ट डिजिट जो 6 हो, उसी का यूनिट प्लेस 6 डिजिट 6 में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले कि all the squares, we know that when the square of a number has either 4 or 6, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में यदि 4 हो या 6 हो, तभी आपका यूनिट प्लेस स्क्वायर नंबर्स जो आपका आएगा वो एंड्स विद द 6 होगा। 24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 36 स्क्वायर, 34 स्क्वायर आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो, अभी बाद में आपको कैलकुलेटर में नहीं करना है, बट 24 का स्क्वायर आप निकालो तो 24 का स्क्वायर जो भी आएगा वो क्या होगा, एंड्स विथ द 6 ही होगा। आप देख लो, एक चेक ट्राई भी कर लेना। तो इसका मतलब 1 और 9 होता है तो एंड विथ द 1 होता है, वैसे ही 4 एंड 6 यूनिट प्लेस में हो तो वो भी स्क्वायर नंबर एंड विथ द क्या होगा, 6 ही होगा। समझ में आ गया? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 36 का स्क्वायर है, अब 6 का स्क्वायर ही निकालो तो क्या होता है, 36 हुआ ना। अब 36 का जब स्क्वायर निकालो तो उसका जो आंसर आता है वो भी एंड विथ 6 ही होगा। तो ये चीज रूल की तरह आपको याद रखना है पेज नंबर 91 में। अब what will be the ones digit in the square of the following numbers? 1 2 3 4 नंबर है, वंस डिजिट इन स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 2 6 3 8 7। कौन सा नंबर हम यूज करेंगे वंस डिजिट इन स्क्वायर? ऑब्वियसली 1 2 3 4 है, देन वंस डिजिट इन स्क्वायर 6 ही होगा। 7 है तो 9 होगा। ऑब्वियसली 5 2 6 9 8 है तो 4 होगा। ये जो प्रोसीजर आपको बताई गई है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट। वंस डिजिट का मतलब ऐसा होता है कि ये नंबर का यदि आप स्क्वायर निकालो तो जो आंसर आता है उसका लास्ट वन, एटलीस्ट 1 की पोजीशंस पे यूनिट प्लेस, वंस प्लेस हम बोलते हैं ना, यूनिट प्लेस बोलते हैं या 1 प्लेस बोलते हैं, तो वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, ये नंबर्स आपको दिखा रहे हैं। 0 है तो 0 ही आएगी, 2 है तो 4 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 4 है तो भी 6 आएगा। आपको पता है ना, अभी बोले हम 4 और 6 का 6 होता है।
तो ये सब आपकी आज का होमवर्क भी है, यानी 91 और 92 दोनों मैंने जो भी है यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए वो सभी आपको फिर से लिख के होमवर्क में भेजना है। तो ये चीज आपको याद रहे। और अप टू द एंड ऑफ दिस थिंग्स आपको मैं बोल दूं फिर से, एनसीईआरटी ट्राई दिस पेज नंबर 92 वाला एग्जाम्पल, 92 वाला ये एग्जाम्पल, एंड 91 वाला ये एग्जाम्पल्स, एंड 91 वाला फर्स्ट वन एग्जाम्पल्स। ये पोर्शन है जो पूरा, वो आपको आज इसी पोजीशंस पे मुझे लिख के भेजना है। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन सारे के दिए, आप रिवाइंड करके भी देख लो। पेज नंबर 91 एंड 92 की जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व की, वही चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। So I hope so that you understood well of the squares and you read more from the NCERT book as well as your supplementary book. Is it okay? So I hope so that you understood all these things. If you're having any kind of the questions, you just ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon in next lecture. Thank you. Thank you very much.